Hello everyone, welcome to CGB Mentors. I hope you are doing beautiful and great. So this video is for 60 days NABARD grade A plan, right? But specifically for the working aspirants, we have already uploaded a video that caters to the non-working aspirants, which they have to study 6 to 7 hours, है ना? Max to max 7 hours उनको पढ़ना होगा, and they are good to go with. Now, then there will be queries कि मैम मैं तो working हूँ, आप हमारे लिए क्यों नहीं plan बनाते? हमें भी कुछ बता दीजिए, हमें भी कुछ ideas दे दीजिए, and our competitors, obviously there will be a FOMO inside that those people who are not working, they have more time. But trust me, the plan settles in such a way that you are basically equal to those aspirants who are not working. Why? I'll let you know, right? So first of all, you have to think of one thing. एक चीज आपको जो दिमाग में बैठा लेनी है, that you cannot waste your holidays, you cannot waste your Saturdays, right? You cannot waste your Sundays, and जो भी आपको छुट्टी मिलती है, right? जो भी आपको छुट्टी मिलती है या आप ऑफ लेते हो, that you have to utilize in a better way. Let's say a person who is not working, they are studying 7 hours each day, then what you have to do, you have to study, right? You have to study 4 hours each day. 4 hours देखो आपको निकालने पड़ेंगे, चाहे सुबह निकालो 2 hours, फिर या फिर सुबह शाम को निकालो 2 hours में. Some people or some aspirants try to watch the video in the office hours, right? Maybe in the breaks or maybe anyhow, right? So in that you have to basically study for 4 hours each day and in your weekends, right? So basically I'm assuming 6 to 7 days you get off, right? Including Saturdays or 2 Saturdays, है ना? Or 4 Sundays or any kind of leave, you will get 6 to 7 days. How many days? 6 to 7 days. Now in that you have to study for 7 to 8 hours. That is for sure. That is how you will basically be equally competitive to those who are not वर्किंग. अब देखो आपको लगेगा कि मैम बारी बारी कंपटीशन की बात क्यों कर रही है, ये तो रियलिटी है, ये तो सच है. आपको फोमो भी इस बात का होता है, हम तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमारा क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है. सो मैंने जो पहले वीडियो बनाया था उसमें बस आई हैव बेसिकली डिटेल्ड जो वीडियो बनाया था उसमें यही बताया था कि देखो हर बार आपको क्या करना है. यू हैव टू डू ईच डे, राइट? फॉर दोज एस्पिरेंट्स आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंपेयर इट. दे वर डूइंग गवर्नमेंट स्कीम्स, दे वर डूइंग ARD static each day, right? They were writing descriptive answer, that too 5 days in a week, right? 5 days in a week, not every day, क्योंकि हर बार हर दिन के लिए पॉसिबल भी नहीं हो पाता है. And then they were doing PIB each day. But now आपको क्या करना है? I'll tell you. Wait a minute. ठीक है. Now आपको क्या करना है? आपको each day you have to study government schemes, right? And ARD static for 4 hours. 2 hours government schemes and 2 hours this. और जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है. लेट्स से मुझे यहाँ 2.5 देने हैं और लेट्स से मुझे यहाँ 1.5 देने हैं क्योंकि मेरा स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है एंड आई कैन जस्ट इजी वॉच द वीडियोज, लर्न द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है. Now obviously you have to fast, sharp and smart if you're a working aspirant and you should know how to manage your time, है ना. So अब क्या है, हर जो बच्चा हर दिन डिस्क्रिप्टिव और PIB कर रहा है, you have to devote extra time because for the non-working aspirants I have devoted 1 hour for the PIB. That means 6 days or 6 to 7 hours. Now what you will do, you will study PIB. You will study PIB on Saturdays and Sundays, right? For 6 hours, 3 hours on Saturday, 3 hours on Sunday, or however it is. For 6 hours you will be able to study. वो भी 6 घंटा पढ़ रहे हैं, आप भी 6 घंटा पढ़ रहे हो. So it's not a like you are now basically on the same track with them. Then descriptive. अब देखो descriptive में आपको क्या करना है, right? They are writing 1 answer each day. Now आपको अलग से effort डालना पड़ेगा. On the holidays you have to write 2 answers, right? 2 आंसर्स आपको ईच डे लिखने पड़ेंगे जब भी आपकी हॉलीडे है. यू हैव टू राइट 2 आंसर्स. लेट्स से सैटरडे संडे आप क्या हो जाएगी, 4 आंसर्स लिख पाएंगे. सो कहीं ना कहीं यू आर बैलेंसिंग, राइट? सी I'll show you. So this plan basically goes for the 60 days plan. Basically we are starting on 25th of June, right? Approximately June में यहाँ पे आप start करेंगे. Then July and at the end of August you will be basically able to cover the largest chunk of the syllabus. What is the largest chunk? As I said, government schemes आपको मैंने बहुत बार बताया है. Government schemes has 45 questions, right? 45 questions. That also includes what? PIB questions also, number 1. Number 2, ARD 25 to 30 questions comes in the ARD static, right? 30 questions आ जाते हैं आपके in out of 40 questions. That's this for the phase 1, है ना? हम phase 1 की बात कर रहे हैं. And government schemes में भी there comes, right, 40 to 45 questions. That also includes some portions of PIB. तो you can just imagine, यहाँ पे मेरे को लिखना चाहिए 30, right? So basically यहाँ पे भी गवर्नमेंट स्कीम्स के क्वेश्चंस आएंगे, ESI में भी गवर्नमेंट स्कीम्स के आएंगे, इंक्लूडिंग दैट PIB. सो 70 क्वेश्चंस
राइट, इंक्लूड्स व्हाट, पीआईबी, इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट स्कीम्स, इट इंक्लूड्स एआरडी स्टैटिक, है ना। तो आपको इस ये 3 चीजों पे फोकस करना है, दैट इज व्हाट, एग्रीकल्चर स्टैटिक स्कीम्स एंड पीआईबी। नाउ कमिंग टू द राइट, इसमें शायद मैंने नहीं लिखा है कि नहीं, 1 सेकेंड ना, ठीक है। सो कमिंग टू द क्यूआरई, राइट, देन देयर पीपल हु विल बी लाइक हम क्यूआरई कब करेंगे, है ना, हम डिसीजन मेकिंग कब करेंगे, हम कंप्यूटर कब करेंगे, दीज आर क्वालिफाइंग सेशंस, यू आल्सो नो मेरिट में नहीं जाता है। नाउ सी, जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, राइट, उसके बाद इवन इफ यू डिवोट 1 आवर, राइट, ईच डे तो क्यूआरई दैट इज मोर देन इनफ। नबार्ड का क्यूआरई सेक्शन बहुत ईजी आता है, ट्रस्ट मी, मेरे से निकल रहा है तो ठीक है, क्यूआरई बहुत ईजी आता है, बिकॉज मैं भी ज्यादा पढ़ती नहीं थी क्यूआरई, ठीक है, थोड़ा सा आप बस 2-4 टॉपिक्स कर लो, नंबर सीरीज कर लो, ब्लड रिलेशंस कर लो, है ना, और डीआई कर लो, देन यू आर सॉर्टेड, राइट। मुझे भी बहुत डर लगता है क्वांट रीजनिंग एंड not actually English, not reasoning also, but the quant. Why? Because my speed is a little slower. Quant में speed, like calculation is all okay, the conceptuals are okay, but when it comes to the speed, I had the speed fear, right? In the mains examination, जो भी आपका एग्जाम होता है, मुझे speed fear रहता है, right? कि quant में से नहीं होगा. So definitely आपको क्या करना है, QRE आप तब कर सकते हो, and DM 1-2 घंटे मैक्स टू मैक्स 2-3 आवर्स लगेंगे, यू आर सॉर्टेड। एंड फॉर द सेम फॉर द पीसी, तो अगर आपने अभी भी कर लिया तो कोई फायदा नहीं है, फिर से रिवाइज करोगे, बिकॉज ऑल इज अबाउट क्रैमिंग ओवर हियर, तो हम वो तब करेंगे, वी विल बी डीलिंग विद दैट। सो नाउ वी आर डीलिंग विद दिस, नाउ वी आर डीलिंग विद दिस, ठीक है। यू हैव टू बेसिकली डिवोट 4 आवर्स। अब देखो ऐसा भी हो सकता है आपने 2 आवर्स एआरडी स्टैटिक आज पढ़ लिया, बट देन अगले दिन मुझे 2 घंटा रिवीजन करना पड़ेगा, राइट। सो बेसिकली 2 आवर्स फॉर द गवर्नमेंट स्कीम्स, ARD static for 1 hour, revision for 1 hour. Let's say that day you are not doing the revision, then you can devote 2 hours for the ARD static. Or that day you are not doing ARD, then you have to devote 2 hours for revision. And revision is the key. ठीक है, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं जब भी नेक्स्ट डे आई डोंट पिक द न्यू टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू रिवाइव, आई विल रिवाइज इट कि मैंने क्या पढ़ा है, आई विल रिवाइज इट। मेरा आधा दिन या आधा टाइम लगा लो, 40 to 50% ऑफ द टाइम मेरा रिविजन पे ही जाता है, एंड दैट्स हाउ यू डू इट, कि हर रोज जो आपने पढ़ा है वो कंपाइल होता रहता है, देन यू कीप ऑन रिवाइजिंग इट आइदर वाया MCQs और वाया वीडियोज और हाउ एवर यू विश टू डू। सो रिविजन प्लीज 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 इंक्लूड रिविजन इन योर सेक्शन, अदरवाइज आगे दौड़ पीछे छोड़, मम्मी की कहावत आती है ना बचपन में, वो हो जाएगा, कुछ भी लर्न नहीं रहेगा, राइट। अब देखो आई एम अज्यूमिंग दैट यू विल बी फेसिंग नहीं, यू विल बी एंजॉइंग, देखिए यू विल बी हैविंग बेसिकली 6 days what holiday, either it can be 2 Saturdays, 4 Sundays or any kind of leave, 6 to 7 days। तो उसमें आपको क्या करना है, 3 hours, राइट, क्या करना है, 3 hours आपको क्या करना है, PIB करना है on 2 Saturdays and 4 Sundays or any other 2 days, right? So approximately you have 6 to 7 days, I just mean to say that 6 to 7 days आपकी छुट्टी है, जैसा भी है आपको मिल जाएंगे, उनमें से आपको PIB 3 आवर्स पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। अब कैसे पढ़ना है, ऑब्वियसली यूट्यूब पे मासूम मैम की वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे, राइट, और वो क्या बोलते हैं, कंपाइलेशन होती है, लाइक 3-4 डेज का एक साथ, 3-4 डेज का एक साथ, देन यू हैव टू वॉच द वीडियोस, यू हैव टू कैन मेक नोट्स, राइट, tiny notes, or you can basically download it, or however you want to highlight it or download it, print it, and then right, फिर descriptive answer writing 1 to 2 hours आपको descriptive writing देने हैं, क्यों, because non working expert was giving 1 hour per day, you have to give 2 hours on what, Saturdays and Sundays, why, because you have to write 2 questions। अब देखो initially 2 questions लिखने में मैंने 2 hours क्यों दिए, because you have to read, है ना, you have to structure your answer, you have to basically make the content, then you have to type it, you have to evaluate it, so initially 2 घंटे तो लगेंगे 2 क्वेश्चन में, ट्रस्ट मी, एंड टिल आपका एग्जाम आ जाएगा मेंस के लिए या फेज 2 जिसको बोलते हैं, है ना, फॉर द IPPS एग्जामिनेशंस व्हिच से इट हैज फेज 2। सो इन दैट सिनेरियो, ठीक है, आपको भी पता होगा दैट 22 to 24 मिनट्स यू गेट फॉर 15 मार्कर एंड 17 to 18 मिनट्स यू गेट, बेसिकली 20 मिनट्स मिलते हैं, बट मैं 17-18 चला के चलती थी कि 17 मिनट में खत्म होना चाहिए, फिर भी 20 लगते थे फॉर द 10 मार्कर, राइट। सो यू विल बी बेसिकली इन दिस कंफर्टेबल जोन, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब क्वेश्चन ये होता है, मैंने PIB का बता दिया कि PIB कहां से करना है, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है सारी वीडियोस PIB की। नाउ डिस्क्रिप्टिव कैसे करना है, डिस्क्रिप्टिव आई हैव आल्सो बेसिकली मेड अ डिटेल वीडियो अबाउट द डिस्क्रिप्टिव नबार्ड, उसका टाइटल है गॉट 43 out of 50 मार्क्स, थंबनेल आई मीन, तो प्लीज 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 वो देख लेना, बहुत ज्यादा डिटेल वीडियो है, ठीक है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, टाइपिंग कैसे करनी है,
और हाउ टू बेसिकली जो भी डील विद द स्पीड इश्यूज, ठीक है। कई बार क्या होता है, टाइपिंग इश्यूज होते हैं, फिर स्पीड इश्यूज होते हैं, राइट। कंटेंट कहाँ से पढ़ना है, राइट। पढ़ लिया तो उसको स्ट्रक्चर कैसे करना है। मेरे तो बहुत सारे फियर्स हैं, मैं तो कंप्यूटर पे लिखती ही नहीं थी, मेरा तो डिस्क्रिप्टिव अच्छा नहीं है। हाउ टू ऑर्गेनाइज योर कंटेंट, आई हैव शोन माय ओन पर्सनल पीडीएफ ऑल्सो, जो मैंने 4 साल की मेहनत उसमें बेसिकली डिवोटेड है। ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन इज बीइंग कवर्ड, आई हैव रिटन माई सेल्फ इन दिस ओवर द पीरियड ऑफ 4 years। तो आई मीन टू से दैट गो एंड वॉच दैट वीडियो। आपके सारे सोल्यूशंस एक वीडियो में ना खत्म हो जाए तो आप सारी क्वेरीज और आपको सोल्यूशंस एक वीडियो में ना मिल जाए तो देख लेना, ठीक है। इट इज द बेस्ट वीडियो आई थिंक, ठीक है। अपनी मुंह की बात नहीं कर रही हूँ, बट जस्ट बिकॉज आई सॉ माई वीडियो तो मुझे लगा कि इससे अच्छा कुछ और हो नहीं सकता, सब कुछ उसमें कवर हो चुका है, ठीक है। चलिए, सो सैटरडे संडेज को क्या करोगे आप, पीआईबी, डिस्क्रिप्टिव, रिविजन या जो भी बफर है, जिस तरीके से आपको कोई भी चीज कंप्लीट नहीं हुई है, देन आप उस चीज को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ये लिखा है क्यूआरई, डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर, ठीक है। सो अभी चलिए, सो दिस इज द प्लान, राइट। दिस इज द प्लान, दिस इज हाउ द पीपीटी इज, इन विच, वेट अ मिनट, right? So basically we are starting a plan with 25th June, right? And 28th June, where you are starting with all the ministries, right? See, हम क्या करेंगे, फोकस कर रहे हैं हर दिन किस पे, स्कीम्स पे कर रहे हैं एंड एआरडी स्टैटिक पे कर रहे हैं। अब उसमें क्या करना है आपको, जब आप स्कीम्स पढ़ेंगे, राइट, जब आप स्कीम्स पढ़ेंगे उसमें से, राइट, एग्रीकल्चर की स्कीम्स आपको डेली 2 स्कीम्स करनी है। कैसे करोगे मुझे नहीं पता, वीडियो देखो, कुछ भी करो, रीड आउट करो, बिकॉज एग्रीकल्चर का जो स्कीम है और एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज का स्कीम है, दैट इज क्वाइट वास्ट, ठीक है, वो बहुत वास्ट है, राइट। उसमें क्या होता है कि अगर आप एक बार में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करने लग जाओगे, आपको 10 दिन लग जाएंगे, और एक स्कीम अगर मिनिस्ट्री को आपने 10 दिन दे दिए, देन यू विल बी इन पैनिक मोड कि भाई मैं तो 10 दिन से एक ही स्कीम कर रहा हूँ, वो भी मुझे पता नहीं याद है या नहीं, what am I doing, and Ministry of Agriculture is the most important scheme for NABARD. So what's you going to do, you are basically whatever ministry you are handling, for example on 25th of June you are मोसी जी को आप डील कर रहे हो, मोसी जी, राइट, वी हैव सर्टेन नेम्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को हम मोसी जी बोल देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को मोटा भाई बोल देते हैं। तो इस तरीके से लेट्स से यू आर डूइंग, देन डू 2 schemes, राइट, 2 schemes each day for Ministry of Agriculture, जब तक के आपकी सारी की सारी एग्रीकल्चर्स की, राइट, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज की मिनिस्ट्री कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो आप इसको हर बार करेंगे। एंड इफ यू थिंक ओके मैं तो 2 मिनिस्ट्री एक साथ नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, लेट्स से टुडे यू हैव डन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, तो ठीक है, 1-2 घंटा फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को दे दो, नेक्स्ट डे फिर से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को दे दो। बट मेरे लिए ये ज्यादा अच्छा प्लान है कि 2 स्कीम्स हर रोज हो रही है, एक मिनिस्ट्री हर रोज हो रही है, 3-4 दिन में एक मिनिस्ट्री हो जा रही है, और एग्रीकल्चर का साइड बाय साइड चलता रहेगा, फिर मैं रिवाइज भी करती रहूंगी, और एग्रीकल्चर का वो इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, राइट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर वाली मिनिस्ट्री से, फाइनेंस की मिनिस्ट्री से, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ट्राइबल अफेयर्स एंड सोशल जस्टिस। दीज आर द टॉप 5 मिनिस्ट्रीज इन द NABARD एग्जामिनेशन, राइट। नाउ 29 to 6 जुलाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, देन आई हैव, ठीक है, आई हैव बेसिकली प्रोवाइडेड ईच, हर 2 मिनिस्ट्रीज के बाद हमने बफर प्रोवाइड किया है 2 डेज का, कभी 3 डेज का। सो बेसिकली बफर इसलिए प्रोवाइड किया गया है कि देखो अगर आपका कुछ कवर नहीं होता है, यू हैव योर ओन रीजंस, पर्सनल रीजंस, प्रोफेशनल रीजंस, सो दैट यू आर एबल टू कवर दैट ऑल्सो। हर बार मैंने आपको जो बफर दिया है, इट्स नॉट अ स्ट्रिक्ट प्लान, इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल प्लान, राइट। देन वेट अ मिनट, राइट, आफ्टर दैट क्या हुआ ये, हाँ ये नेक्स्ट स्लाइड आ गया। सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, देन स्किल्स, देन अगेन आई हैव प्रोवाइडेड द बफर, देन देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, राइट। आई थिंक आई शुड शो यू द टेबल दैट इज मोर, क्या बोलते हैं, more concise, easy to watch it out. This is the table. So देख रहे हो आप, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर साथ के साथ करो, फिर आपको करना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिर 2 दिन का बफर है, फिर SMEs, ट्राइबल अफेयर्स। आई हैव अरेंज्ड द मिनिस्ट्रीज इन सच अ वे सो दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री आर कवर्ड, राइट। देन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, Ministry of Education, then again buffer, MORD, then some miscellaneous schemes. Now, ma'am, this is important. Why I have put down here? I'll tell you. In the paid course, we will be doing MORD, right? Either you can watch live sessions, राइट। सो क्या होगा, लाइव सेशंस देखोगे तो कहीं ना कहीं आपकी MORD साथ के साथ कंप्लीट हो जाएगी, राइट। और आपको MORD यू कैन प्लेस इट, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे MORD पूरा करना है पहले, देन यू कैन प्लेस इट बिफोर SMEs और ट्राइबल अफेयर्स के बाद, बिफोर स्किल्स यू कैन पुट MORD, तब तक के हमारे सेशंस भी हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज हाउ इट विल गो, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको दिखा देती हूँ ARD स्टैटिक का, right, ARD static का दिखा देती हूँ। See, in ARD static also I have placed the chapter wise
the importance in a descending order. Now, I have made government schemes ka separate video strategy session. I have made a separate video for ARD static as well, and I have made a separate video for a descriptive. तो तीनों जाके देख लेना, छोटे-छोटे videos है. It would definitely help you. Now, so agriculture and basically strategy about, for example, सबसे ज़्यादा questions किस chapter से पूछे जाते हैं, right? सबसे ज़्यादा marks और type of questions क्या है? मुझे priority पे क्या रखना है? When it comes to schemes, when it comes to what? ARD. And the importance of it. So agriculture and classification of crops. ठीक है? You get, right, how many days? 4 days. And we are starting it with July so that you get acclimatized with the environment कि अच्छा मुझे पढ़ाई करनी है. पहले स्टार्टिंग में चलो मैं 2-3 घंटे भी पढ़ती हूँ तो काफ़ी है. उसके बाद मैं धीरे धीरे अपने प्लान में I'll add ARD. So this is from the 1st July, whereas government schemes wala that is from 25th of June. So first of all you cover with agriculture and classification of crops, farming systems. अब कैसे करना है उसका सेपरेट वीडियो बना हुआ है. वीडियो देखना है, PDF देखना है, नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, all of that has a separate video. Right? Then you have buffer for 1 day, right? Then factors affecting crops, climatic zones. Soil and properties very very important chapter, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा दिन दिए हैं. और in fact it is huge also when it comes to the physical properties of soil, chemical properties of soil, then soil erosion. Again 1 day buffer, seed एक दिन का काम है, छोटा सा चैप्टर है. मोस्टली उनसे यही पूछा जाता है कि what are the type of seeds. इसका एक mnemonic बनाया हुआ है, nuclear seeds, breeder seeds, foundation seeds, certified seeds, right? Then dry farming and irrigation, horticulture very 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 important chapter. बहुत सारे questions इससे पूछे जाते हैं, right? Then again buffer, this is also very important. Animal husbandry, animal breeding and poultry. Then forex and forex laws, एक क्वेश्चन आ जाता है मुश्किल से नहीं, आराम से आता है. forex का एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है. Then plants and nutrients, manures, organic farming, watersheds management, agriculture extension, farm and this. So engineering. So we started from what, July, and we ended this plan on 31st of August. So basically it is a 2-month plan, you can say. Now एक चीज और मुझे आपको बतानी थी, यहाँ तक, कहाँ तक? Till here, the very most important chapters. That means till 15th of August approximately आप अपने independence बनाओगे ना, तब you will be independent enough to say कि now I have covered the major chunk of ARD static, because सारे के सारे mostly questions यहाँ से आपके cover होते हैं, यहाँ से आपके जो questions है वो आ जाते हैं, right? So देखो फॉरेस्ट्री से एक क्वेश्चन आ जाता है, नो डाउट, ठीक है. प्रिसिजन फार्मिंग से भी आ सकता है. एंड यहाँ से लेट्स से टिलेज है या प्राइमरी टिलेज है या एक दो बुलावर्ड का एक दो क्वेश्चन आ जाता है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू कवर द ARD स्टैटिक, राइट. दिस इज हाउ यू हैव टू बेसिकली कवर द गवर्नमेंट स्कीम्स, राइट. और PIB, ठीक है. PIB का मैंने आपको ऑलरेडी हैव टोल्ड यू, बताया ना अभी कि PIB आपको क्या करना है, 3 आवर्स यू हैव टू स्टडी. जब भी आपका हॉलीडे है आप अपना वीडियो देखो, उसको कवर करो. फिर आप क्या कर सकते हो, हर दिन जब भी हॉलीडे होगा हर दिन यू हैव टू राइट 2 क्वेश्चंस, राइट. एक 15 मार्कर लिख लो, राइट. एक 10 मार्कर लिख लो. अपने नोट्स को अरेंज कर लो. कैसे करना है नोट्स अरेंज वो भी मैंने डिस्क्रिप्टिव वाले वीडियो में बताया है. नाउ दिस इज फॉर द वर्किंग एस्पिरेंट्स, सो दैट यू डोंट फील फियर, यू डोंट फील एंजाइटी, यू डोंट फील पैनिक, बिकॉज रियली यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम. आपके पास अभी टाइम है. अभी तो नोटिफिकेशन का कोई भवरा भनक कुछ भी नहीं है. कोई भी हमारे क्या बोलते हैं उसको, गुप्तचर है ना, कुछ भी नहीं है. और सो दैट इज हाउ यू डू इट, राइट. एंड नाउ कमिंग टू दिस PDF विल बी प्रोवाइडेड टू यू, right, on our Telegram channel, written with the heading working experience. Non-working experience के लिए अलग है, आपके लिए अलग है. However, this table is similar, but only the number of hours we have to devote it, right, that is different, है ना. बस यही है. तो इसको फॉलो कीजिए. यू आर वेरी वेरी गुड टू गो. आपका 80% प्रिपरेशन पूरा हो जाएगा. Why I'm saying 80%? Because then you have to prepare for QRA, decision making computer, as a qualifying section. And because I'll tell you, see, in this 21st to 31st August, I have basically 20th August को या आप लगा लो मैक्स टू मैक्स आपका ARD गवर्नमेंट स्कीम्स दोनों कवर होंगे. एंड देन 21st to 31st of August वी हैव टू प्रैक्टिस MCQs फॉर व्हाट, गवर्नमेंट स्कीम्स. ठीक है, ऑलरेडी बने हुए हैं, अपलोडेड भी होंगे, तो मिनिस्ट्री वाइज यू कैन स्टार्ट इट. एंड डू नॉट फॉरगेट टू डू द रिविजन ईच डे. उसके बाद अगर कोई क्वेरीज आते हैं, यू हैव टू टॉक टू मी, और यू हैव टू लेट्स से मेल करो, कमेंट करो. मेल कर दीजिए, रिप्लाई मिल जाएगा. कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, ठीक है. आई विल सी इट आउट एंड यू कैन बेसिकली कॉल अस, राइट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सेशन. CGB Mentors, सोनेगा. थैंक यू.